Hello friends, in last lecture we have completed all kind of objectives based on the second chapter derivatives. Now let us move to the third chapter applications of derivatives, in which we are going to see three bits here: tangent and normal, maxima and minima, radius of curvature. In this lecture we will see the first bit of the application, tangent and normal. Let us see few basic concepts regarding tangent, normal, slope, equation of line, etc. फर्स्ट वन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये पहले देखते हैं. सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड वाई इज इक्वल एफ एक्स बी एनी कर्व. x1 y1 एक कौन सा भी पॉइंट है इस कर्व पे एंड सपोज दिस लाइन इज टँजेंट टू दैट कर्व. मित्रांनो, y इज इक्वल टू एफ एक्स हे कोणतेही कर्व आहे, x1 y1 हे कोणतेही पॉइंट आहे त्या कर्ववरती आणि ही एक लाईन आहे ज्याला आपण टँजेंट म्हणतो. मित्रांनो, या एकाच पॉइंट मधून स्पर्श करून जाणाऱ्या रेषेला आपण स्पर्शिका म्हणत असतो, ज्याला टँजेंट असं म्हणायचं इथून पुढे. नाउ लुक हियर, द कन्सेप्ट सेज दॅट इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व, then the derivative of y with respect to x, which is denoted by dy by dx, is equal to fx का derivative f dash x represents the slope of the tangent. स्लोप का मतलब होता है उतार या चढ़ाव. मित्रांनो, स्लोप याचा अर्थ चढ किंवा उतार. सपोज दिस इज एनी लाइन, देन स्लोप इज डिफाइंड एज राइज अपॉन रन. मित्रांनो, स्लोपची व्याख्या कशी केली आहे? राइज अपॉन रन. दिस डिस्टन्स इज rise and this distance is run. So slope is defined as it is the ratio of rise to run. Well, further, if theta be inclination of that line, then slope is also be given as tan theta, as this will be a right angle triangle. Opposite side upon adjacent side is denoted by tan theta in trigonometry. करेक्ट है मित्रांनो? समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू ह्याला आपण tan theta असं म्हणतो. जर या ठिकाणी थीटा असेल तर हे राइट एंगल ट्रायंगल होता है. सो स्लोप इज ऑल्सो बी गिवन एज tan theta. Also it is given as difference between y coordinates upon difference between x coordinates. In last semester we have seen all such kind of concepts regarding slope. Now in this case the slope of a tangent is given as dy by dx. dy by dx represents slope of the tangent, which is denoted by a small letter m. मित्रांनो, स्लोप हे स्मॉल लेटर m ने डिनोट केलं जातं. फर्दर, इफ थीटा बी इंक्लिनेशन ऑफ अ टैंजेंट, देन स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. अभी भी देखा था हमने कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा आल्सो. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0. मित्रांनो, स्लोप याचा अर्थ चढ किंवा उतार, राइज अपॉन रन. ओके, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन ऑब्वियसली इट्स स्लोप इज इक्वल टू हाउ मच? 0. ओके, सो स्लोप ऑफ अ टैंजेंट which is parallel to x axis is given as 0. Further, if two lines are parallel, then their slopes are equal. m1 is equal to m2. In last semester coordinate geometry we have seen these two concepts. If two lines are parallel, then their slopes are equal. m1 is equal to m2. And if two lines are perpendicular, then the relation between slopes is like this: m1 m2 is equal to -1, or m1 is equal to -1 upon m2. Next one, slope of a curve at a particular point is known as gradient. Gradient का मतलब है slope of a tangent at particular point. Okay, now the next concept, normal. All of you are well familiar with tangent. Now the normal means a line which is perpendicular to tangent at that point is normal. मित्रांनो, नॉर्मल याचा अर्थ काय सांगितलंय? टँजेंटला परपेंडिकुलर असणारी रेषा, ज्याला आपण नॉर्मल म्हणायचं आहे. नॉर्मल का मतलब है टैंजेंट को अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया उस पॉइंट में, तो उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल. ओके, नाउ स्लोप ऑफ अ टैंजेंट इज इक्वल टू m. अभी हमने कंसेप्ट देखा है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू m. देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन m. एज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, we know the concept of perpendicular lines, that if two lines are perpendicular then m1 is equal to -1 upon m2. करेक्ट है? अगर tangent का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन m ऐसे निकालते हैं.
मित्रांनो, टँजंटचा जर स्लोप माहीत असेल तर नॉर्मलचा स्लोप हे त्याला उलटं करून निगेटिव्ह करायचं. सपोज टैंजेंट का स्लोप 3 है तो नॉर्मल का स्लोप उल्टा करके माइनस करने का -1/3. सपोज द स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 1/2, then slope of normal will be उल्टा करके नेगेटिव -2 like this. Okay, -2/1 मतलब -2. Now let us see how to write equation of tangent and normal passing through certain point x1 y1. So friends, equation of a tangent at x1 y1 is given by this equation. Y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1. टेंजेंट का इक्वेशन जिसका स्लोप m है और पासिंग थ्रू x1 y1 is given by y minus y1 is equal to slope into bracket x minus x1. So this is equation of tangent. Now equation of normal is given by y minus y1 is equal to slope of normal, जो उल्टा करके नेगेटिव होता है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू ब्रॅकेट x मायनस x1. ओके मित्रांनो, टँजंटचं इक्वेशन हे y मायनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1 असं द्यायचं. आणि नॉर्मलचं इक्वेशन फक्त इथं m असेल तर इथं उलटं करून निगेटिव्ह -1/m असं लिहायचं, जे नॉर्मलचं इक्वेशन देतं. नाउ लेट अस सी फ्यू ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन टँजंट अँड नॉर्मल. फर्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब है -1/m. देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m, वेर m का मतलब होता है dy/dx विच इज स्लोप ऑफ टैंजेंट. ओके, सो m इज इक्वल टू dy/dx. स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, इट कम्स -1/m, इट मीन्स -1/dy/dx. इट इज इन ऑप्शन डी. मित्रांनो, टँजंटचं स्लोप हे m असतं, नॉर्मलचं स्लोप हे -1/m असतं. टँजंटचं स्लोप याचा अर्थ dy/dx. ओके, क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेलं आहे, स्लोप ऑफ नॉर्मल जे काय असायला पाहिजे, -1/m असायला पाहिजे. सो इट इज इक्वल टू -1/m मतलब कितना, dy/dx. ओके, सो इट इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकली dy/dx रिप्रेजेंट्स, dy/dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टँजंट. मित्रांनो, आत्ताच आपण कन्सेप्ट पाहिलेला आहे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, इट इज स्लोप ऑफ टँजंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x क्यूब ॲट x इज इक्वल टू 4 इज m इज इक्वल टू. सो वी नो दॅट m इज इक्वल टू dy/dx. आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे, m याचा अर्थ काय असतं, dy/dx. y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x क्यूब इज देअर, देन वी फाइंड इट्स डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. It is looking like root star. We know that the derivative of root star is given by 1/2 root star into star dash, isn't it? तर रूट मध्ये x क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह कसा येणार त्या हिशोबाने, इट कम्स 1/2 रूट स्टार बोले तो कितना हुआ यहाँ पे, x क्यूब into star dash means what, derivative of x cube. What is derivative of x cube here, 3x². ओके, सो फ्रेंड्स, रूट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं, 1/2 रूट एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x². नाउ इन दिस केस एट x इज इक्वल टू 4 इज देयर. सो एट x इज इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3 इंटू 4² डिवाइडेड बाय एक्सच्या ठिकाणी 4 ठेवायचं आहे, 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 4 क्यूब मतलब 64. ओके, so after calculating this on calculator we get the answer as 3. हे तुम्ही कॅल्सीवरती सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला 3 असं उत्तर येतं. इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, at what point on the curve y is equal to e raised to x the slope of tangent is 1. So friends, question is at what point, it means we are going to find the values of x and y so that at which the slope of tangent is 1. हम लोगों को ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे tangent का स्लोप जो है ना 1 है. So we know that the slope of tangent is given by dy/dx. m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, dy/dx. So in this case dy/dx is equal to, in this example y is equal to e raised to x is there. जर अपन डेरिवेटिव काढलो तर dy/dx किती येतं, e raised to x का डेरिवेटिव कितना होगा, e raised to x. ओके, and in the question it is given that the slope of tangent is 1. slope of tangent is 1 का मतलब e raised to x is equal to कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ओके,
Now look at this equation carefully. E raised to x is equal to 1. We know the concept that anything raised to 0 is equal to 1. In the same way, e raised to 0 is also 1. What it indicates? It implies that x is equal to 0. मित्रांनो, e raised to 0 ची किंमत 1 असतं, त्यामुळं x ची किंमत किती असायला पाहिजे? 0 असायला पाहिजे, हे लक्षात येतं. ओके. Now, this is the value of x. Now, to find the value of y, we select this equation. Y is equal to e raised to x. Y is equal to e raised to x. X की जगह कितना रखना है? 0. So, what is e raised to 0? It is 1. ठीक है? So, what about point then? Point कसं येणार? x, y असं point असतं. So, in this case, the point must be 0, 1. 0, 1. So, 0, 1 be the answer. It is in option C. So option C is correct. So friends, I want to share you a shortcut method to solve such kind of examples. एक shortcut सांगतो ते थोडंसं नीट ऐकून घ्या. ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का एक और तरीका है, शॉर्टकट मेथड है. ध्यान से सुनिए. आपको ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स में पुटअप करना होगा. पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. x is equal to 1, y is equal to 1 in this equation. X is equal to 0, y is equal to 1 in this equation. Similarly, x is equal to 0, y is equal to 0 in this equation. The point which satisfies this equation is the correct answer. I repeat, मित्रांनो, हे चारही पॉइंट्स जे आहेत ना, या इक्वेशन मध्ये ठेवायचं. जे पॉइंट या इक्वेशनचं सॅटिस्फॅक्शन करताय ते करेक्ट आन्सर असतं. नाउ लेट अस क्रॉस व्हेरीफाय. x ची किंमत 1, y ची किंमत 0 यामध्ये ठेवूया. y इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे 0 हुआ. 0 इज इक्वल टू e रेस टू 1. नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट द आंसर. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 हियर. 1 इज इक्वल टू e रेस टू 1. e रेस टू 1 मतलब e इज इक्वल टू 1. नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट द आंसर. d देखिए 0 0. x इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे e रेस टू 0. e रेस टू 0 मतलब 1 होता है. 1 इज इक्वल टू y की कीमत 0. 1 इज इक्वल टू 0. नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट द आंसर. आता हे चेक करू. ये चेक करते हैं. x की कीमत 0 और y की कीमत 1 पुटअप कीजिए. x इज इक्वल टू 0 पुटअप करने से ये होता है e रेस टू 0. e रेस टू 0 मतलब 1 एंड y की कीमत है 1. 1 इज इक्वल टू 1. So this point satisfies this equation. So this is the correct answer. Instead of actual solution, we can only by observation judge that which one is the correct answer only by putting these points in the original equation. Okay. So this one is the shortcut. We are going to use the shortcut in the next examples. Look here. The point on the curve y is equal to 3x minus x square at which the slope of tangent is minus 5 is up. आपको क्या करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये चारों पॉइंट्स इसमें पुटअप करके देखना है. लेट अस टेक द फर्स्ट ऑप्शन 4 एंड माइनस 4. y की कीमत माइनस 4 इज इक्वल टू x की कीमत 4 पुटअप करना है. 4 मतलब 3 इंटू 4 हुआ 12 माइनस x स्क्वायर मतलब 16 होता है. 12 minus 16 it is minus 4. So this is the correct option. So friends, at x is equal to 4, y gives you minus 4. In this way option A is correct. अगर आप लोगों ने ये सारे ऑप्शंस ट्राई किए तो भी ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता. सो ये तीनों ऑप्शंस रिजेक्ट होते हैं. ओके. सो ऑप्शन ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. So option A is correct. Next question, similar kind of question is there. What is the point on the curve y is equal to so and so where the tangent is parallel to x axis? आप लोगों को क्या करना है कि ये चारों पॉइंट जो है ना इस इक्वेशन में पुटअप करना होगा एंड जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इसका करेक्ट आंसर होता है. ओके. So friends, after cross-checking all the options, you notice that option C satisfies this equation. अगर x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू -9/2 यहाँ पे पुटअप किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. x इज इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे 3/2 पुटअप किया तो यहाँ पे 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 आ जाएगा. ओके. फर्दर if you calculate this calculation on calculator, it gives you -9/2. So the point must be 3/2 and -9/2. Okay. So it is in option C. So option C is correct. Now the next question. Slope of tangent to curve x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube theta at theta is equal to pi by 4 is.
We know that slope of tangent is equal to m, it is equal to dy by dx. In this case, the values of x and y are given in terms of theta. So we find dy by dx as derivative of y upon derivative of x. Look here, derivative of y b sin क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, जिसमें b कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर है, उससे धक्का नहीं लगाते. साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव स्टार क्यूब के हिसाब से निकालेंगे. स्टार क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश. तो साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हुआ इस हिसाब से 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू स्टार डैश मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव, इट इज कॉस थीटा. In the last lecture, we have seen the derivatives of parametric function in which the same question we have discussed. Further, dx मतलब x का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर है, कीप इट एज इट इज. cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव अगेन स्टार क्यूब के हिसाब से इट मस्ट बी 3 स्टार स्क्वायर मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू स्टार डैश का मतलब है cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. ओके, सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ dy by dx comes like this: b by a into 3 get cancel. Sin square theta divided by sin theta, a sin theta get removed. Cos theta upon cos square theta, a single cos theta will be cancelled here. In the numerator, sin theta is remaining, and in the denominator, negative cos theta is remaining, minus cos theta is remaining. Okay, so in this way, it is equal to minus b by a into sin theta upon cos theta means tan theta. Now the question is at theta is equal to pi by 4. Okay. So at theta is equal to pi by 4, the value of slope is equal to minus b by a into tan pi by 4. We know that tan pi by 4 is equal to how much? 1. मित्रांनो, tan pi by 4 ची किंमत 1 असतं. So final answer will be minus b by a. So minus b by a, it is in option D. So option D is correct. Now 8th question. The point on the curve y is equal to so and so, where the tangent is parallel to x-axis is, we use here shortcut method. We put all these points in this equation. The point which satisfies this equation is the correct option. Okay, मित्रांनो, आपण हे चारही पॉइंट्स यामध्ये टाकून बघू, एक एक करून चेक करू. Now let us check first option here, 1,3. It means x की कीमत 1 पुटअप करो, y 3 आता है क्या इतना चेक करना है. For x is equal to 1, it gives you 1 square minus 6 into 1 plus 8. It is equal to 1 square मतलब 1 plus 8, 9, 9 minus 6 मतलब 3. So this is the correct option. Okay, मित्रांनो, x ची किंमत जर तुम्ही 1 ठेवलात तर y ची किंमत किती यायला लागलाय? 3 यायला लागलाय. It satisfies this equation. So option A is correct. No doubt, if you cross check all these remaining options in this equation, they does not satisfy this equation. Okay, मित्रांनो, जर तुम्ही हे पॉइंट्स यामध्ये टाकून बघितलात तर हे पॉइंट्स या इक्वेशनचं समाधान करत नाही, सॅटिस्फाय करत नाही. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टँजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एट 2,0 इज, स्लोप ऑफ टैंजेंट पूछा है, मतलब m की कीमत पूछा है, इट इज dy by dx. ओके, इट इज इक्वल टू dy by dx, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन केल्यानंतर dy by dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. ओके, नाउ इन दिस केस द पॉइंट इज गिवन एट 2,0. सो देयरफॉर वी गेट स्लोप ऑफ टैंजेंट m इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू x की कीमत कितना पुटअप करना है? 2. ओके, सो वी गेट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. इन दिस वे द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 2,0 गिव्स यू माइनस 2. Minus 2 is in option B, so option B is correct. 10th question, slope of tangent to curve x is equal to 1 upon t, y is equal to 1 minus 1 upon t at t is equal to 2 is m is equal to. So friends, slope of tangent का मतलब होता है dy by dx. Slope of tangent याचा अर्थ dy by dx, and in this case the values of y and x are given in terms of t, so we find the different derivatives here. dy मतलब न्यूमरेटर में y वाले टर्म का डेरिवेटिव, 1 माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेअर होता है. मित्रांनो, 1 चा डेरिवेटिव 0, मिडलला माइनस 1 अपॉन टी चा डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेअर. फर्दर इन द डिनोमिनेटर dx बोले तो x का डेरिवेटिव, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव इट इज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेअर. ओके, now minus 1 upon t square minus 1 upon t square get cancelled.
हे वर खाली दोन्ही कॅन्सल होतं. फायनल आन्सर विल बी -1. हे निगेटिव्ह आहे तसं राहतं आणि हे दोन्ही कॅन्सल झाल्यानंतर 1 येतं. फायनल आन्सर इज -1. ओके, सो -1 इट इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next question, slope of tangent to curve xy is equal to 6 at 1,6 is slope of tangent मतलब once again dy by dx. Okay, so the equation of curve is xy is equal to 6. Now we find the derivative here. Differentiating derivative काढल्यानंतर it is looking like u into v, no doubt. x into y is looking like u into v and इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट टर्म मतलब x इंटू सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड टर्म बोले तो y इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1. गेटिंग क्लियर? इज इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव 0. ओके, नाउ x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y आता है. सो dy बाई डी एक्स की कीमत जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इट कम्स -y बाय x एंड द क्वेश्चन इज एट 1,6. एट 1,6 का मतलब है x की कीमत 1, y की कीमत 6 पुट अप करना है. सो एट 1,6 युअर स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी निगेटिव. y च्या जागी 6 पुट अप करा, x च्या जागी 1 पुट अप करा, 6/1 मतलब -6 इज युअर फाइनल आंसर. इट इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगला सवाल देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स एट x इज इक्वल टू 9 इज. क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू dy by dx. इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट एक्स. इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय 1/2 रूट x. ओके, नाउ एट x इज इक्वल टू 9 means at x is equal to 9 the value of dy by dx comes 1/2 root 9 जो 1 कितना होता है? रूट 9 मतलब 3, 3 into 2 मतलब 6. so this is slope of tangent. okay, slope of tangent मतलब dy by dx जिसे m से डिनोट किया जाता है. in the question the slope of normal पूछा है. we know the relation between tangent and normal that if the slope of tangent is m then slope of normal is -1/m. okay, उलट करून निगेटिव्ह असतं as a tangent and normal are perpendicular to each other. so in this case the slope of normal will be 1/6 ला उल्टा करून निगेटिव -1/m जैसा लिखना है. इसको अगर उल्टा करके माइनस किया तो कितना हो जाएगा? -6/1 means -6. so this is slope of normal. okay, now -6 is the answer. it is in option C. So option C is correct. Next question, slope of tangent to curve x square plus y square is equal to 25 at -3,4 is equal to. Slope of tangent means dy by dx पूछा है. Okay, equation is x square plus y square is equal to 25. Okay, now differentiating derivative काढूयात. On differentiating we get the derivative of x square as 2x plus derivative of y square as 2y into dy by dx is equal to derivative of 25 is 0, constant derivative 0. question is at -3,4. at -3,4 का मतलब x is equal to -3, y is equal to 4 पुटअप करना है. गेटिंग क्लियर? सो यहाँ पे x की कीमत अगर -3 पुटअप किया तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू -3 मतलब -6. ओके, फर्दर प्लस 2 इंटू वाई की कीमत 4 पुटअप करना है. 2 इंटू 4 मतलब 8 डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0. मित्रांनो ॲट -3 4 याचा अर्थ इथं एक्सच्या जागी -3 वायच्या जागी 4 ठेवायचं. ओके, नाव 8 डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू -6 पलीकडे पाठवा बिकम्स +6. in the end dy by dx is equal to 6/8 be the answer which gives you 3/4 as answer. 6/8 मतलब 3/4. It is in option A. So option A is correct. Slope of tangent मतलब dy by dx and the value of dy by dx is 3/4. Okay. Now suppose in the same question if the question is a slope of normal then what will happen there? याच क्वेश्चन मध्ये जर स्लोप ऑफ टँजंटच्या ऐवजी स्लोप ऑफ नॉर्मल विचारलं तर काय केलं असतं आपण? 3/4 काय झालं? स्लोप ऑफ टँजंट. तर स्लोप ऑफ नॉर्मल काय झालं असतं?
उलटं करून निगेटिव्ह म्हणजे -4/3 झालं असतं, जे स्लोप ऑफ काय होता है, नॉर्मल होता है. समझे. स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 3/4 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता, -4/3 होता. ओके, अगर टेंजेंट की जगह नॉर्मल पूछा होता तो. नेक्स्ट वन, at what point on the curve y is equal to so and so the slope of tangent is 10. So friends, once again we are going to use here a shortcut method. यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चारों ऑप्शंस है ना इसमें पुटअप करते हैं. So the option which satisfies this equation is the correct answer. Okay, let us check first option here. x की कीमत अगर 23 पुटअप किया तो देखते ही पता चलता है कि y की कीमत 7 नहीं आता. मतलब लुक हियर, 23 का स्क्वायर -4 इंटू 23 प्लस 2, इसकी कीमत 7, नॉट पॉसिबल. ओके, चेक ऑप्शन बी हियर. x इज इक्वल टू 7 पुटअप करा, y ची किंमत 23 येते का नाही हे चेक करा. पुट x इज इक्वल टू 7 हियर, इट कम्स 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 इंटू 7 मतलब 28 प्लस 2, 49 minus 28 plus 2, it gives you 23. Okay, so y is equal to 23 for x is equal to 7. So this option is correct. Now let us see the next question. Equation of tangent to curve y is equal to x square minus 2x minus 3 at 3,0 is. In this question equation of tangent पूछा है, मतलब tangent का equation. तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरा सिंप्लीफिकेशन एज पर थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट देखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट जो dy बाई डी एक्स होता है. dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप ऑफ टैंजेंट है, जिसे m से डिनोट किया जाता है. m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, -3 का डेरिवेटिव 0. फर्दर एट 3,0 मतलब x की कीमत 3, y की कीमत 0 पुटअप करो. सो स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी, x की कीमत 3 पुटअप करना है तो 2 इंटू 3 -2, इट इज इक्वल टू 6 minus 2, it is 4. So in this way we get slope of tangent is equal to how much, 4. Now point क्या है यहाँ पे, 3,0. Now the concept says that equation of tangent is given by y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1. Okay, in the basics we have seen this one. Equation of tangent is y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1. Now put the values here. y माइनस y1 का मतलब है ये होता है x1 y1. ओके, सो y1 का मतलब होता है 0 इज इक्वल टू m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट इज 4 इनसाइड द ब्रॅकेट. x मायनस x1 मतलब यहाँ पे 3 है. गेटिंग क्लिअर मित्रांनो. जे पॉईंट दिलेलं असतं ना त्याला x1 y1 असं म्हणायचं, जे स्लोप आहे त्याला m डिनोट करायचं. यानुसार इक्वेशन लिहायचं असतं. व्हॅल्यूज पुटअप करा. y मायनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रॅकेट x मायनस 3. नाउ y इज इक्वल टू 4x, 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा. y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 4x माइनस 4 3 जार 12. सो फाइनली y माइनस 4x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ये फाइनल आंसर होता है. और इफ यू मेक नेगेटिव थ्रू आउट देन इट गिव्स यू नेगेटिव y, पॉजिटिव 4x, नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0. दोनों में से कोई भी ऑप्शन चलेगा. ओके, नाउ चेक वेदर दिस ऑप्शन इज एग्जिस्ट और नॉट. ओके, नेगेटिव y प्लस 4x नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0. इट एग्जिस्ट इन ऑप्शन बी. माइनस y प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देर इज वन मोर मेथड विच इज शॉर्टकट मेथड. ध्यान से सुनिए. शॉर्टकट मेथड मतलब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना 3,0, ये पॉइंट इन चारों इक्वेशन में पुटअप करके देखना है की विच इक्वेशन सॅटिस्फाईज दिस पॉइंट. आय रिपीट मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, या चारही ऑप्शनमध्ये एक्सच्या ठिकाणी 3, वायच्या ठिकाणी 0 पुटअप करून चेक करा. जे इक्वेशन या पॉइंटला सॅटिस्फाय करतं ते इक्वेशन करेक्ट असतं. ये वाला जो पॉइंट है ना वो चारों ऑप्शंस में पुटअप करो. मतलब x की कीमत 3, y की कीमत 0 पुटअप करो. जो इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है वो करेक्ट ऑप्शन होता है. ओके, लेट अस क्रॉस चेक दिस वन. ये ऑप्शन आया कि नहीं, देखिए क्रॉस चेक करते हैं. यहाँ पे x की कीमत 3, y की कीमत 0 पुटअप किया तो ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं. x की कीमत 3 मतलब यहाँ पे 4 इंटू 3 मतलब 12, माइनस y की कीमत 0 मतलब ये 0,
minus 12 is equal to 0. Is it true? 12 minus 12 is equal to 0? Yes, it is. So this is the correct answer. Okay, so in this way we can use the shortcut method also. Instead of full solving, we use this shortcut. Okay, now the next question. Equation of normal to curve y is equal to x into 2 minus x at 2 comma 0 is, these four options are there. Okay, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 2,0 को सेटिस्फाई करता है. ओके, पहला ऑप्शन चेक करते हैं. x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 सेटअप करते हैं. यहाँ पे आएगा 0, x की वैल्यू 2 मतलब ये होगा -2 + 2 इज इक्वल टू 0. पहला ऑप्शन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन दिस इक्वेशन सेटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0. y 0 मतलब ये 0 होगा. x की कीमत 2 सेटअप करना है तो ये होगा -2 एंड +2 इज इक्वल टू कितना होता है 0. सो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द फर्स्ट इक्वेशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ इफ यू क्रॉस चेक द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, यू विल ऑब्जर्व दैट द पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस. देखिए, x की वैल्यू 2 पुटअप कीजिए, 2 + 2 ये होगा 4. y की वैल्यू 0 है, 4 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट द आंसर. ये वाला चेक कीजिए, y की वैल्यू 0 पुटअप करना है, x की वैल्यू 2 पुटअप करना है, 2 + 2 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल. सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट द आंसर. ऑप्शन ए satisfies this point, so option A is correct. Now the next question, slope of tangent to curve y is equal to 4x e raised to x at origin is m is equal to. So friends, origin का मतलब होता है 0 0. origin याचा अर्थ काय 0 0. क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ टँजंट. स्लोप ऑफ टँजंट म्हणजे काय, m which is given by dy by dx. Now it is equal to y is equal to 4x into e raised to x is there. We keep 4 as it is because it is a constant and multiplier. We keep 4 as it is. Look here, x into e raised to x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, u into v के फॉर्मूला से. ओके, नाउ फर्स्ट टर्म x into डेरिवेटिव सेकेंड टर्म e raised to x plus second term e raised to x into derivative of first term, it is 1. Okay, so this is the value of dy by dx. Question is at origin. At origin मतलब at 0, 0. In this equation we put x is equal to 0 and y is equal to 0 here. We get the slope of tangent as 4 inside the bracket. x की कीमत अगर 0 सेटअप किया तो 0 into anything हो जाएगा 0 plus what about e raised to 0? We know that anything raised to 0 is equal to how much? 1. Okay, मित्रांनो, कोणत्याही संख्येला 0th power 1 असतं. e raised to 0 पण किती येणार, 1 येणार. आपका आंसर कितना आएगा फाइनली, 4 into 1 मतलब 4. So 4 is the answer which is slope of tangent. It is in option B. So option B is correct. Now the next example, slope of normal to curve 4x square plus 9y square is equal to 40 at 1, 2 is स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, मतलब -1/m की व्हॅल्यू पूछा है. ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल विचारलाय. फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ टँजंट. आपण पहिल्यांदा टँजंटचं स्लोप काढू. ओके, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 40. डेरिवेटिव निकालते हैं. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 4 कीप इट एज इट इज. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 9 कीप इट एज इट इज. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 40 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0. उसके बाद एट 1, 2 मतलब एट 1, 2 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 सेटअप करते हैं. x की कीमत 1 पुटअप करना है, 4 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 8 प्लस y की वैल्यू 2 पुटअप करना है, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 dy by dx is equal to 0. So we get 36 dy by dx is equal to -8. Okay, now in the end dy by dx is equal to 36 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा. 36 को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, बाय 36. ओके, नाउ -8/36 का मतलब कितना हुआ, dy by dx की वैल्यू -8/36 मतलब इट इज -2/9. ओके, 4 2s are 8, 4 9s are 36. Okay, -2/9 is dy by dx which is slope of tangent. It is slope of tangent which is denoted by m.
Now in this case question is slope of normal is equal to how much, which is given by -1/m. इसका उल्टा करके नेगेटिव, so it is equal to, बोलिए उल्टा करके नेगेटिव किया तो कितना होता है 9/2. Okay, so 9/2 is the slope of normal. It is in option D. So option D is correct. Now the next question, equation of normal to curve so and so at 1 comma -2 is, 4 options are given. We use in this case shortcut method. We put 1 comma -2 in all the 4 equations. The equation which satisfies this point is the correct option. Okay, पहला ऑप्शन चेक करते हैं. x की वैल्यू 1 पुटअप करना है, 14 इंटू 1 -31 इंटू y की वैल्यू -2 पुटअप करना है. ओके, सो इट इज इक्वल टू 14 प्लस इट इज 62, इट इज इक्वल टू 76, इट इज इक्वल टू 76. So option A satisfies this point 1 comma -2. So option A is correct. Obviously, if you cross check all the remaining 3 options, they does not satisfy 1 comma -2 as answer. Okay. Now option A satisfies this point. So option A is correct. Now the next one. Slope of tangent to curve x is equal to 1 upon t, y is equal to t minus 1 upon t at t is equal to 2 is, now slope of tangent is given by m. It is equal to dy by dx is equal to, the values of x and y are given in terms of t. x और y के वैल्यूज t में दिए हैं. ठीक है, न्यूमरेटर में y वाले टर्म का डेरिवेटिव t माइनस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर. ओके, नाउ इन द डिनोमिनेटर dx मतलब x वाले टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर. Further, in the numerator, we cross multiply the terms here. It is equal to minus minus becomes plus 1 into t square मतलब t square plus numerator में 1 है, whole thing divided by t square. Getting clear? इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं मित्रांनो. 1 into t square म्हणजे t square plus 1 whole thing divided by t square. आपण असं लिहिलं तरी चालतं, by t square. Now in the denominator, minus 1 by t square is present, so we keep it as it is, minus 1 by t square. In this case, t square and t square get cancelled here. Finally, at t is equal to 2, at t is equal to 2, the value of dy by dx is equal to, यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुटअप करना है. ये होगा 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1. ओके, -1 अपॉन टी स्क्वायर में टी स्क्वायर कैंसिल हुआ है, -1 इज रिमेनिंग, सो 4 प्लस 1 अपॉन -1 मतलब -5 be the answer. It is in option D. So option D is correct. Now the last question based on equations of tangent and normal. Question is, equation of tangent to curve y is equal to x square at point -1 comma 1 is. So we are going to use once again a shortcut method here. Option A चेक करते हैं, -1 comma 1 चारों ऑप्शंस में पुटअप करके देखेंगे. ऑप्शन ए चेक करते हैं, x की वैल्यू -1 मतलब ये हुआ -2, y की वैल्यू 1 पुटअप करना है -1, यहाँ पे है -1. इज इट 0? इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. चेक ऑप्शन बी, x की वैल्यू -1 सो ये होगा -2, y की वैल्यू 1 मतलब ये हुआ +1, +2, इज इट 0? It is not equal to 0. So option B is also not the answer. Let us check option C here. X is equal to -1 पुटअप करना है, ये होगा -2. Y की वैल्यू 1 पुटअप करना है, ये आएगा +1 एंड यहाँ पे है +1 is equal to, is it 0? Yes, it is 0. So option C satisfies this point. So option C is correct. So friends, in this way, with the help of the shortcuts and tricks, we are able to solve such kind of parallel examples here. Okay. In the next lecture, we will see the second application, maxima and minima theory. Thank you.